Student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter Why Do We Fall Ill, and this is the part 1. What is the introduction of this chapter? आपको मालूम है सेल्स क्या हैं? फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म. They are made up of variety of chemical substance such as proteins, carbohydrates, fats and lipids and so on. हमने ये भी देखा कि each living cell क्या है? Itself a dynamic unit. Things are always happening there. Cells continually move from one place to place. Even when cell is immobile, cell repair or formation of new cell and other such functions are continuously being carried out within cells. Anything that prevents functioning of the cells and tissue will lead to the lack of proper activities of the body. Significance of health. Health is described as the state of complete physical, mental and social well-being. जो being healthy means होता है that one feels good physically, has a positive outlook and is able to cope with the social and mental pressure without much difficulty. Being healthy is far more than just being free from disease. For maintaining a healthy life cycle, a person needs to have a balanced and varied diet, needs to exercise, live regularly in a proper shelter and get enough sleep. Maintaining a good hygiene also reduces the chances of developing an infection. Disease regularly usually indicate malfunction in the body. A doctor is able to diagnose diseases is by identifying the symptoms. Symptoms of disease may be physical, mental or both. Is affected not only by unbalanced diet but also by a disease causing organism which may be waterborne, airborne or foodborne. Some diseases are caused by infection through microorganisms, insects and parasites. Infection develops when germs, microbes, some pathogenic organisms such as bacteria, fungi, protozoa, nematodes, etc. enter human body. Therefore, to prevent the infection of human disease, we need to keep our environment clean and hygienic. सेकेंड क्या होता है आपको मालूम है, जब हमारा जो हेल्थ होती है या उसका फेलियर होता है उसका रीज़न मेन क्या होता है? ओवरलैप ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू फॉर हेल्थ. ह्यूमन बींग्स आपको मालूम है सोसाइटीज़ में रहते हैं. अवर जो सोशल एनवायरनमेंट है तो वो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ. आपको मालूम है हम विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, ऐसी प्लेसेस में जहाँ पर जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करता है बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट. जस्ट एग्जाम्पल, जस्ट थिंक व्हाट वुड हैपन देयर इज़ नो एजेंसी टू इंश्योर दैट गार्बेज इज़ कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड. तो वहाँ क्या होगा? आपको मालूम है जहाँ गार्बेज होगा, ओपन ड्रेन होंगे, वाटर लाइन स्टैगनेंट होंगे, तो वहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होती है पुअर हेल्थ की वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो जो पब्लिक क्लीनिनेस है वो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है टू एन इंडिविजुअल हेल्थ. समझ में आ रहा है? डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री. हेल्दी क्या होता है? इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. और डिजीज़ फ्री क्या होता है? इट इज़ द स्टेट एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और डिसरेंजमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. सेकेंड क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल ऑन फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट फैक्टर. डिजीज़ फ्रीज क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल ओनली. थर्ड क्या होता है कि हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज़ फ्री और डिजीज़ फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी. हेल्दी पर्सन इज़ एनर्जेटिक एंड एबल टू परफॉर्म as per requirement. Or performance of a disease free person depends upon environment and personal attitude. सोशल इक्वालिटी और जो हारमोनियम्स रिलेशनशिप हमारे पॉपुलेशन में है वो नेसेसरी होती है किसके लिए? इंडिविजुअल हेल्थ के लिए. तो जो हम देखते हैं कि जो ओवरलैप ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी है वो इश्यूज़ होती है किसके लिए? हेल्थ के लिए. तो जो कंडीशन एसेंशियल होती है फॉर गुड हेल्थ वो क्या होती है? स्टेप्स to ensure sanitation, that is clean surroundings by
providing good sewage and rainwater disposal system and proper garbage disposal. Second होता है ability of clean drinking water. Third होता है ability of adequate nutritious food. Fourth होता है social equality and harmony. Disease and its causes. आप देखते हो ह्यूमन जो हेल्थ होती है वो नेगेटिवली अफेक्टेड होती है ड्यू टू फिजियोलॉजिकल मेल फंक्शनिंग और फिजियोलॉजिकल रीज़न और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. तो डिजीज़ मीन्स क्या हो गया? डिस ईज और विदाउट ईज और डिस्कम्फर्ट. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिस्टर्ब्स or modified the performances of the vital function. Disease may be response to a environmental factors, specific infective agents, inherent defects of the organism. सोर्सेस क्या होती हैं डिजीज़ की? आपको मालूम है जो ह्यूमन हेल्थ होती है वो इफ़ेक्टेड होती है वेरियस फैक्टर्स से, कॉजेज से और सोर्सेस से. जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंट्रेंसिक और इंटरनल फैक्टर्स. डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर्स जो एग्जिस्ट करते हैं विद इन ह्यूमन बॉडी उसको हम इंटरेस्टिंग फैक्टर्स बोलते हैं. जो इम्पॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को वो क्या होते हैं? मेल फंक्शनिंग और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स सच एज हार्ट, किडनी, लीवर एक्सेट्रा. सेकेंड क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर. थर्ड होता है हार्मोनल इनबैलेंस. फोर्थ होता है मेल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी दैट इज़ एलर्जी. समझ में आया? सेकेंड होता है एक्सट्रिक्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स. जो डिजीज़ कॉजिंग एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं बाहर से उनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं. इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? अनबैलेंस डाइट और इनएडिक्वेट डाइट. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स सच एज वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिनीथिस, वॉर्म एक्सेट्रा. थर्ड होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूंट्स. और फोर्थ होता है आपका टबैको, अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स. आपको मालूम है जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस होते हैं ये क्या इंक्लूड करते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फैक्टर. जब ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर थ्रू एयर और फूड के अंदर या सॉइल के थ्रू तो ये क्या करते हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट या एनिमल्स के साथ तो ये हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं. थर्ड क्या होता है? लेबल्स ऑफ इमीडिएट कॉज. ये क्या होता है? दे आर एग्जिट वेरियस लेबल्स ऑफ इमीडिएट कॉज. जैसे एग्जांपल है जैसे फ्यू वर्बेज हैं वो सफरिंग कर रही हैं लूज मोशन से तो हम कहते हैं ये इमीडिएट कॉज है ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज़ इज़ अ वायरस. तो जो इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट लेबल कॉजेस, है ना. तो इसलिए इनको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं. और जो लैक हो जाता है जब गुड नरिशमेंट का तो वो इन द बॉडी वो हमारा सेकेंड लेवल कॉज हो जाता है डिज़ीज़ का. जो बेबीज़ हों या कोई भी हो जो सफरिंग करता है किसी भी डिज़ीज़ से. और कभी कभी क्या होता है जो पब्लिक पुअर सर्विसेज होती हैं जैसे प्रोवाइडिंग होती हैं अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन द रीजन वेयर सच बेबीज़ आर लिविंग इन द सोसाइटी एंड पॉवर्टी बिकम्स द थर्ड लेवल कॉज ऑफ द डिजीज़. टाइप्स ऑफ डिजीज़. आपको मालूम है जो ह्यूमन डिजीज़ है उसे हमने फॉलोइंग 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है. कैसे किया है? 2 तरह की तो मेन होती हैं कॉन्जिशियल और एक्वायर्ड. फिर उनको किया है इन्फेक्टिशियस और कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कॉन्युनिकेबल. फिर उसको करा है कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस को. फिर इनको किया है डेफिशिएंसी डिजीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़, डेसेंट्रिक कैंसर डिजीज़, मेटाबॉलिक एलर्जीज़, इंजरीज़. समझ में आया? सेकंड होती है आपकी एक्यूट डिजीज़ेस. फर्स्ट आपका आता है एक्यूट डिजीज़. सेकंड आता है कॉर्निक डिजीज़. थर्ड आता है कॉन्जेनिटल डिजीज़. फोर्थ होता है एक्वायर्ड डिजीज़, इन्फेक्टिशियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़. सो दीज आर द different types of. What are acute disease? Diseases are described as being acute when their symptoms are quickly visible in the body. Example, common cold. Second होता है chronic disease. These types of disease are long term with the symptoms lasting for months or years. Such disease are called chronic disease. Example, elephantiasis, tuberculosis. तो ये जो कॉज करते हैं ना ये ड्रेसिक रहते हैं लॉन्ग टर्म्स पे और इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ पे. क्लियर?
What are the infectious disease? आपको मालूम है disease are caused by some biological agent or pathogen such as virus, bacteria, protozoas, etc. तो ये क्या होती है? infectious disease होती है. Infectious disease can rapidly spread from one person to another by various means such as by physical contact, water, air, food and insect. तो जो since the disease are communicated from disease person to healthy person, so they are known as infectious diseases. What are non-infectious disease? These include जैसे ऑर्गेनिक और मेटाबॉलिक डिजीज़. जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है ये रिस्ट्रिक्टेड होती है ओनली टू दोज पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम दैट. These are not spread from infected person to healthy person. Non-infectious disease may be caused from the lack of certain essential substance in our diet जैसे proteins, vitamins, minerals, etc. Second क्या होता है? General wearing out of degeneration of tissue in old age, है ना. तो ये हो जाता है. थर्ड क्या होता है? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जस्ट लाइक अ कैंसर्स. डिफेक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. और जैसे लास्ट होती है इंजरी एंड डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय एक्सीडेंट्स. ना व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेस? इन्फेक्शन एजेंट्स क्या होते हैं इसके? Organisms that cause disease are classified in a wide range of category. Some of them are virus, some are bacteria, some are fungi, and some are unicellular animals, the protozoa. So some disease are also caused by multicellular organisms such as different kind of worms. Common example जो disease caused by virus होता है वो क्या होता है? Common cold, influenza, dengue, fevers and AIDS. Disease such as typhoid fever, cholera, tuberculosis and anthrax are caused by bacteria. Many common skin infections are caused by different kind of fungi. Protozoa may cause many familiar diseases such as malaria and kala-azar. Worms tend to cause a variety of intestinal infection and elephantiasis. जितने भी ये वायरस होते हैं किसके अंदर रहते हैं? होस्ट सेल के अंदर. Whereas bacteria very rarely do. वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली. ब्लड वॉर्म्स जो होती हैं वो स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं इन कंपैरिजन टू फंगी, वायरस एंड बैक्टीरिया. तो ये कॉमन ट्रेल्स मीन्स होता है कि दे में बायोकेमिकल प्रोसेस इनसाइड देयर सेल्स आर सिमिलर. तो जो ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दिस biochemical mechanism in the member of the group will be effective against many other member of the group. जैसे एंटीबायोटिक कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया. देयरफॉर मोस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया rather than simplify working against one. Virus do not use this pathway at all. That is why antibiotic do not work against viral infection. जैसे we have a common cold, taking of antibiotic does not reduce the severity of duration of disease. Instead, our body secretes an antiviral protein called interferon to combat the virus of blood. However, we get a bacterial bacterial infection with the viral got done taking antibiotic with the help. In that case, too, the antibiotics will work against the bacterial part of infection, not the viral infection. Means of spread of infectious diseases. Infectious disease spread from one person to other normal person by various methods. एयरबॉर्न डिजीज़ आपको मालूम है जो कॉमन कोल्ड हो, निमोनिया हो या ट्यूबरक्लोसिस हो, ये डिजीज़ ये किसके थ्रू फैलती है? एयर के थ्रू. जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर के अंदर, जो फिर ट्रांसमिशन ऑफ दीज माइक्रोब्स अकर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स कफ्ड out by an infected person who sneezes or cough. A person in the variety of such person can inhale these disease-causing microbes and may become infected. Waterborne diseases. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? कॉलेरा है. इन्फेक्शियस डिजीज कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वाटर. कैसे? जब वैन स्टूल फ्रॉम अ समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्टिशियस गट डिजीज सच एज कॉलरा, है ना, तो गेट्स मिक्सड विद द ड्रिंकिंग वाटर यूज बाय पीपल इन लिविंग नियर बाय. तो जो ये कॉलरा इन्फेक्शन एंटर कर जाती है न्यू होस्ट के अंदर थ्रू द वाटर, वो जो पीते हैं और उनके अंदर भी ये डिजीज़ हो जाती है.
सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, आपको मालूम है जो एड्स है मेनली सेक्शुअली है। इसमें क्या होते हैं, जो बोथ ऑफ दीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्शुअल कांटेक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर। हाउएवर क्या होता है, जो सेक्शुअल ट्रांसमिट डिजीज़ आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट। कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट इंक्लूड्स हैंकरचिप्स, हग्स, स्पोर्ट्स, इनकी वजह से नहीं होता है। इन अदर विच वी टच ईच अदर, लेकिन जब हम सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तभी ये होता है। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ थ्रू वेक्टर्स, आपको मालूम है बहुत से एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास रहते हैं और डिजीज़ कैरी करते हैं। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं इन्फेक्टिव एजेंट्स को फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। तो इस एनिमल एक्ट एज अ इंटरमीडिएट मीडिएटर्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या हैं, आर कैरियर ऑफ अ डिजीज़ और इन्फेक्शन। मॉस्किटोज़ आपको मालूम है वेक्टर ऑफ डिजीज़, जिसको हम क्या बोलते हैं, मलेरिया। इन मैनी स्पीशीज़ ऑफ मॉस्किटो द फीमेल जो उसकी वो होती है नीड्स हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू बी एबल टू lay mature eggs. Hence they feed on many warm blooded animals including humans. This is organ specific and tissue specific मैनिफेस्टेशंस। आपको मालूम है जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज़ टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। आपको मालूम है माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज़ आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। तो जो बैक्टीरिया होती हैं वो कॉज करते हैं ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स। माइक्रोब्स होते हैं जो एंटर करते हैं थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट। बैक्टीरिया विच कॉज टाइफाइड और लीवर बैक्टीरिया विच कॉज jaundice. Viruses which cause AIDS enter the body through sexual organs during sexual contact and spread through the lymph to all parts of the body and damages the immune system. Viruses which causes Japanese encephalitis या brain fever enters the body through mosquito bite and goes and infects the brain. तो ये सब क्या होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स हैं जो ऑर्गन्स और हमारे टिश्यू को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयज करते हैं। आपको मालूम है ये भी ज़रूरी है कि जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ मैनिफेस्टेशन है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब इज़ वेरी स्मॉल तो जो डिजीज़ मैनिफेस्टेशन है वो माइनर होती है और अननोटिस्ड होती है। अगर नंबर ऑफ द सेम माइक्रोब्स लार्ज तो डिजीज़ कैन बी सीवियर इनफ टू बी अ लाइफ थ्रेटनिंग। जो इम्यून सिस्टम है इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी। समझ में आ रहा है ना। जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के वो डिपेंड करते हैं ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच दैट माइक्रोब्स टारगेट करते हैं। इधर लंग्स आर द टारगेट्स then symptoms will be a cough and breathlessness. If the liver is targeted, there will be a jaundice. If the brain is the target, we will observe headaches, vomitings, fits or unconsciousness. If we can imagine कि what the symptoms and signs of the infection will be, if we know what the target tissue or organ is, then the infection that are carried out with this tissue or organ. और इन एडिशन टू क्या होता है, ये टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट होता है इन्फेक्शियस डिसीज़ का। देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट्स टू। मोस्ट ऑफ दिस कॉमन इफेक्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। An active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microbes. सम केसेस में क्या होता है, जो टिश्यू स्पेसिफिटी होती है इन्फेक्शन लेड टू अ वेरी जनरल सीम इफेक्ट। जैसे एग्जांपल होता है HIV इन्फेक्शन में वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेजेस फंक्शन। मैनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ HIV डिजीज AIDS are because the body can no longer fight off the many major infection that we face every day. Instant, very small cold can become pneumonia. Similarly, minor gut infection can produce major diarrhea with blood loss. Ultimately, क्या होता है, these other infection that kill people suffering from HIV/AIDS. Hope you will understand the chapter. Rest of the topic we will share in a next video.